Okay, question number 12, chapter Goodwill. The question says, calculate the value of goodwill from the following information. Profits of the firm for last 5 years were as follows. Alright, we'll put few columns here. Year 2020, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, then 24, 25. Profit is given as 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, then 18,000. Now the question says goodwill is to be valued at 3 years purchase of weighted average profit of last 5 years. 1, 2, 3, 4, 5. 5 years profit is already given. Now weights being 1, 2, 3, 4, 5 respectively. Okay. Then additional information says goodwill closing stock for the year 22-23 was overvalued by 2,000. Okay, only one adjustment is given here. Okay, then what we will do? Adjustment. Okay, for 2022-23 stock was overvalued by 2,000. That means profit would be 2,000 more in this particular year. So we will reduce 2,000 here, and same closing capital becomes opening capital of next year, right? So it will be reducing profit of next year by 2,000. So we have to add 2,000 to increase that reduced profit for the next year. ये सारे एडजस्टमेंट हमने नोट्स में भी किए हैं, तो यू जस्ट नीड टू नो द इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इफ ओवरवैल्यूड और अंडरवैल्यूड. ऑलराइट, रीज़न इसका क्या है सब हमने ट्रेडिंग अकाउंट पूरा प्रिपेयर करके क्या रीज़न था, क्यों माइनस हो रहा है और क्यों प्लस हो रहा है, उसको हमने डिस्कस भी किया है. दिक्कत आएगी तो मैं फिर बता दूँगा. ऑलराइट, ठीक है. वेट्स भी ऑलरेडी गिवन है हमें 1, 2, 3, 4, 5. अभी जो प्रॉफिट आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा हमारा. ये देख लेते हैं. For first year no adjustment was there, so normal profit is 20,000 only, then 24,000, then 28,000 after adjustment, then 27,000 after adjustment. No adjustment for next year 24-25, it is only 18,000. Now weights 1, 2, 3, 4, 5. Total of weights 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So this is one of the mistakes students commit. They take number of years as 5 and divide in the formula by 5, but we have to divide it by 15 total of weights. Okay, now adjusted profit would be weighted profit you can say, multiply normal profit with weight. 20,000, 48,000, 84,000. Then 27 into 4 कितना होता है वो भी देख लेते हैं. 27,000 into 1,08,000. Then 18 into 5, 90,000. Now total. Okay, well, this is 90 plus 1,08,000 plus 84,000 plus 48,000 plus 20,000, 3,50,000. All right. Now goodwill is equal to weighted average profit into number of years of purchase of
want weighted average profit and number of years of purchase. Number of years of purchase is given as 3 years purchase. Now just we want weighted average profit, which is total of weighted profit upon total weight. Total of weighted profit is 350 divided by total weight 15. ये है मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं. हम टोटल वेट की बजाय जो नॉर्मल क्वेश्चन में हम करते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 से डिवाइड कर देते हैं. ये गलत हो जाता है. 5 से डिवाइड नहीं करना, टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करना है. राइट, एंड इट इज़ 350 डिवाइडेड बाय 15 is 23,333.33. 23,000 we will put it here. 23,033 into 3 is number of years of purchase. It is coming out to be 70,000. So the value of goodwill is 70,000. Alright, just you need to keep few things in mind. Otherwise, few small mistakes there, like this 15,000, 15, we take it as number of years 5, you have to multiply it with weights. Adjustments are already there. Okay, अभी कोई confusion होगा, you can ask me directly. Alright, one more doubt. Retirement of a partner. Exercise practical questions. Question number 53. Meghna, Mehak and Mandeep were partners in a firm whose balance sheet as of 31st March 23 was as under. We have to check all the points of balance sheet. Analysis of full question is must. It is necessary, without which you should not start writing a solution. Creditors, जनरल रिज़र्व ट्रीटमेंट विद एडजस्टमेंट हमें पता है. पूरा रीड करने का यही प्रोसेस है. आपको एक एक पॉइंट को एनालाइज करना है. जनरल रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट होता है जब भी चेंज इन पीएसआर होगा. रिटायरमेंट है तो चेंज इन पीएसआर है. ऑलराइट, तो रिजर्व्स आपको पहले ही पता होना चाहिए, इसीलिए हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं. कैपिटल्स गिवन, ओके, ऑलराइट. देन कम टू एसेट साइड. कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर. देयर इज़ नो लॉस और एनी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट नीड टू बी रिटर्न ऑफ. आपको एसेट में सिर्फ 3 ही पॉइंट्स मिलेंगे, इसके अलावा है ही नहीं कुछ. आपको क्या राइट ऑफ करना होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज़ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और कोई है ही नहीं फिलहाल आपके सिलेबस में. अदर इज़ P&L डेबिट बैलेंस. एसेट में डेबिट बैलेंस, दैट मीन्स लॉस, ये भी राइट ऑफ होगा. और थर्ड है हमारा गुडविल, सेल्फ इवेल्युएटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इट इज़ नॉट अलाउड, इसलिए इसको भी राइट ऑफ करेंगे. तो 3 ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है. इनमें से ही कोई होगा. इस क्वेश्चन में तो एक भी नहीं है, तो ठीक है, 1 पॉइंट कम हो गया हमारे लिए. महक रिटायर्ड ऑन द स्टेट अंडर फॉलोइंग टर्म्स. फर्स्ट among the different terms were reduce stock and furniture by 5% and 10% respectively. Okay, that we have to revalue asset. Revaluation में चला जाएगा ये. To provide for doubtful debt 10% on debtors, ये भी asset में वेरिएशन लाएगा. लाइबिलिटी को इंक्रीज करके एसेट में ही आप रिड्यूस कर सकते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और आप लाइबिलिटीज़ में शो कर सकते हो प्रोविजन. तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है 10% से. रिवैल्यूएशन, गुडविल वाज वैल्यूड एट 12,000. जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमें उसका शेयर ऑफ गुडविल पे करना है, तो उसके लिए टोटल गुडविल यहाँ पे गिवन है. तो सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो यहाँ काम आ जाएगा हमारा. कौन कितना शेयर परचेज कर रहा है, कौन कितना शेयर सेल कर रहा है, ये हमारे रेशो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो के फॉर्मूले से हो जाएगा. क्रेडिटर्स ऑफ 8,000 वर सेटल्ड एट 7,100. सेटलमेंट हो गया है क्रेडिटर्स का 900 कम में. यहाँ पे भी हमारा फ़ायदा हो गया. महक शुड बी पेड ऑफ. यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट की बात करी गई है. लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने.
and the entire sum payable to Mahek shall be brought by Meghna and Mandeep in such a way that their capitals should be in their new profit sharing ratio and a balance of 25,000 is maintained in the cash account. ये लास्ट क्लास में यही टॉपिक हमने करा था कैपिटल एडजस्टमेंट का. वेरी इजी बट यू नीड टू नो व्हाट टू डू इन सच काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट का हमने एक नोट बनाया था, अगर आपने उसको भी अच्छे से कर लिया है तो आप इसको आराम से ट्रीट कर लोगे. ऑलराइट, तो कैपिटल एडजस्टमेंट है इसमें विद कैश बैलेंस जो मिनिमम हमें मेंटेन करना है. तो लाइन से हम सारे पॉइंट करेंगे. जो पॉइंट जब आएगा उसमें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं दे दूँगा. इससे बेनिफिट हमारा ये होगा कि चेंज इन PSR भी रिवाइज हो जाएगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर भी रिवाइज हो जाएगा, और रिटायरमेंट का तो ये क्वेश्चन है ही, वो तो हो ही रहा है. बेनिफिट यही है हमारे पार्टनरशिप बुक का कि सारे चैप्टर्स में कॉमन टॉपिक्स हैं. रिवीजन आराम से हो सकता है, आपको बस यही समझना है. ऑलराइट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू फर्म. तो रिवैल्यूएशन से स्टार्ट कर देते हैं. Revaluation account. We will treat assets and liabilities. Any changes in assets and liabilities will be posted in revaluation account because एक जर्नल तो पुट हुई होगी, उसी के वजह से चेंज हो रहा है. राइट, अकाउंट्स की लैंग्वेज ही जर्नल है. जर्नल एंट्री के थ्रू ही आप चेंजेस कर सकते हो किसी भी एसेट, किसी भी लाइबिलिटी में. राइट, रिवैल्यूएशन तो लेजर है, सेकेंडरी बुक. जर्नल से लेजर में आप पोस्ट कर रहे हो. शॉर्टकट्स भी है हमारे पास, आप यूज़ कर सकते हो आराम से. एसेट इंक्रीज़ होगा या लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, एंड इफ एसेट डिक्रीजेस और लाइबिलिटी इंक्रीजेस डेबिट. यहाँ पे देखो आपका नुकसान है, एसेट कम होना भी नुकसान है, लाइबिलिटी बढ़ना भी एक नुकसान ही है. एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का घटना ये फ़ायदा है. तो आपका क्रेडिट साइड प्रॉफिट वाली साइड हो जाता है अगर वो ज़्यादा है तो, और डेबिट साइड ज़्यादा है तो आपकी नुकसान वाली साइड ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. राइट, तो पर्टिकुलर अमाउंट शॉर्ट में कर लेते हैं फटाफट से. एब्रीविएशन वैसे एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है. और फर्स्ट पॉइंट वॉज टू रिड्यूस स्टॉक and furniture by 5 and 10% respectively. That means stock is to be reduced by 5%. बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट आप चेक करो 28,000 है, इसका 5% कितना होता है 1,400. स्टॉक रिड्यूस, एसेट रिड्यूस, डेबिट हो जाएगा टू स्टॉक 1,400. देन फर्नीचर by 10% we have to reduce, again debit होगा to furniture. Furniture's value was 5,000, 10% that means 500 से reduce हो गया. डिफरेंस अमाउंट ही आप जर्नल में लिखते हो, वही डिफरेंस अमाउंट से वो प्लस या माइनस होगा, और वही जर्नल लेजर में देखो पोस्ट हो रही है. Second point was to provide for depreciation, provide for doubtful debts at 10% on debtors. Debtors चेक कर लेते हैं कितने, 20,000 का 10% प्रोविजन क्रिएट, दैट मीन्स लाइबिलिटी को बढ़ाना, डेबिट हो जाएगा, है ना. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है. Right, 20,000 का 10%, 2,000 provision is created by you through journal entry, and then we are posting in secondary book revaluation ledger account. All right, now creditors of 8,000 were settled at 7,100. यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं कितने की 7,100, जबकि क्रेडिटर्स है 28,000 की हमारी बैलेंस शीट में, इसमें से 8,000 के साथ हम सेटल कर रहे हैं. राइट, तो हम क्रेडिटर्स को पहले रीवैल्यू करेंगे, 900 कम कर देंगे बाय क्रेडिटर्स 900, 8,000 लेस 900. लाइबिलिटी देखो कम हो रही है, ये वाला पॉइंट. 8,000 से 900 आपने रिड्यूस करा तो 7,100 पे ये पॉइंट आ गया. 8,000 क्रेडिटर्स को रिड्यूस कर दिया. अब हमारे पास 900 के क्रेडिटर्स है ही नहीं. जैसे ही आप ये लेजर में पोस्ट करते हो लाइबिलिटी कम हो जाती है.
अब इसको सेटल कर रहे हो, मान सकते हैं कि आपने पेमेंट कर दिया है, तो आप पेमेंट कर दो 7100 की। नाउ टोटल, लेट्स चेक दी टोटल, क्योंकि फिफ्थ पॉइंट तो वैसे भी कैपिटल एडजस्टमेंट का है, एसेट और लाइबिलिटी में कोई चेंजेस है नहीं। हम टोटल देख लेते हैं। डेबिट का टोटल है 1400 प्लस 500 प्लस 2000, 3900। देखो डेबिट ज़्यादा, नुकसान ज़्यादा है। क्रेडिट में आपके शॉर्टफॉल हो गया, 3000 का बैलेंस आ गया। अब नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम, डेबिट साइड ज़्यादा, क्रेडिट कम, है ना। तो लॉस ही हो गया आपका जब नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम हो रहा है एसेट और लाइबिलिटी के वैल्यू में चेंजेस की वजह से। तो लॉस आपका बट शॉर्ट वाली साइड पे करेंगे। टू लॉस ट्रांसफ़र टू, अब बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट से ही सारे एसेट और लाइबिलिटी को आप रीवैल्यू कर रहे हो, पुरानी बैलेंस शीट के ही ये सारे आइटम हैं। तो ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड आइटम्स होते हैं, ओल्ड आइटम्स को ही आप ट्रीट करते हो रीवैल्यूशन में। तो यहाँ एक स्टेटमेंट हम याद रखेंगे, ओल्ड आइटम्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। तो बैलेंस शीट जो पुरानी है उसी को ट्रीट कर रहे हो, तो सारे ओल्ड आइटम ही होते हैं बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे ओल्ड आइटम्स की ट्रीटमेंट हो गया, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। तो ओल्ड पार्टनर्स में तो तीनों हैं, ये नहीं करना कि रिटायर हो गया। मेघना एंड महक एंड मनदीप। ओल्ड आइटम्स, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो इज, ओल्ड रेशो गिवन है क्या हमें? नहीं गिवन है, तो इक्वल मान लेंगे। 1000, 1000, 1000, तीनों ने 1000 का लॉस बियर किया है। ओके ओके, नाउ विल मूव टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 का बना लेते हैं। एक मिनट, अच्छे से बनाते हैं इसको। Three partners, 3 columns you have to make। हाँ, जब मैं कॉलम्स बना रहा हूँ इसमें आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है इसमें। हमारा लास्ट जो कैपिटल एडजस्टमेंट था वो हम इसमें एक क्वेश्चन के थ्रू कर रहे हैं। टोटल का भी बना लेते हैं। ठीक है। ऑलराइट, डेबिट डिक्रीज, क्रेडिट इंक्रीज एज पर मॉडल अप्रोच। कैपिटल अकाउंट, ओनर्स अकाउंट इज लाइबिलिटी फॉर अस, एंड व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिट होता है, और व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीजेस डेबिट होता है, क्योंकि सारी लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस को लाइबिलिटी को क्रेडिट करोगे तो इंक्रीज़ हो जाएगा, डेबिट करोगे तो उसके अकाउंट में पैसा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमारे शॉर्टकट्स भी हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पर्टिकुलर्स, मेघना, महक, देन मनदीप, अगेन देन एज वी नो आइडेंटिकल होता है डेबिट एंड क्रेडिट। पर्टिकुलर्स, मेघना, महक एंड देन मनदीप। ऑल राइट, नाउ वी विल फॉलो द स्टेप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हर बार स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप इज़ ट्रांसफ़र बैलेंस शीट आइटम्स। ओल्ड बैलेंस शीट देखते हैं क्या क्या ट्रांसफ़र होगा। लेजर अकाउंट है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, क्रॉस ट्रांसफ़र होके लाइबिलिटी से क्रॉस ट्रांसफ़र बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस
brought down, which is 20,000, 14,500 and 10,000. Okay. Then general reserve is 7,500. किस रेशो में? ओल्ड आइटम्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो. अब ओल्ड रेशो इक्वल ही है हमारा, तो 7,500 हमारा रिजर्व है. तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 25, 25, 2500. दैट्स इट. लाइबिलिटीज़ में और कुछ नहीं है. एसेट साइड में देखते हैं कोई लॉस है क्या. तीन ही हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. इन तीन के अलावा और कुछ नहीं है. इस क्वेश्चन में तो एक भी नहीं है. क्रॉस ट्रांसफ़र वरना हो जाता. फर्स्ट स्टेप डन. सेकंड स्टेप, ट्रांसफ़र इवोल्यूशन प्रॉफिट और लॉस. लॉस हुआ है, देखो आपको ये क्रॉस ट्रांसफ़र डेबिट करके अमाउंट कम ही होगा क्योंकि लॉस हो रहा है. सब क्रॉस ट्रांसफ़र ही जाएगा. 2, रीवैल्यूएशन लॉस. तीनों का 1,000 है. सेकंड स्टेप डन. थर्ड स्टेप हमारा है गुडविल ट्रीटमेंट. गुडविल ट्रीटमेंट, अब जो जा रहा है वो अपना शेयर बेच के जाएगा, मतलब सेल करके जाएगा, सेक्रीफाइस करके जाएगा. तो सेक्रीफाइस मतलब सेल. जो बेचेगा उसको पैसा मिलेगा. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को फिर क्रेडिट करना होगा. क्रेडिट करके पैसा बढ़ता है अकाउंट में. और जो ख़रीद रहा है शेयर, गेन कर रहा है, परचेज़ कर रहा है, वो पेमेंट देगा, मतलब उसके अकाउंट को हम डेबिट करके पैसा कम कर देंगे. तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है हमारी एंट्री, वो इसी वजह से है. ऑलराइट. अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं है. न्यू क्या, ओल्ड भी नहीं है. अब ओल्ड नहीं होता तो इक्वल होता है. न्यू रेशो भी नहीं गिवन है. और न्यू रेशो को निकालने के लिए कोई टेक्निक भी नहीं गिवन है कि रिटायरिंग पार्टनर sold his share 1/5 to one partner, 2/5 to another partner. ऐसा कुछ नहीं गिवन है. तो न्यू रेशो ना गिवन हो एक, और कोई टेक्निक भी ना गिवन हो न्यू रेशो निकालने की, दो. ये दोनों ही जब ना गिवन हो तो हम ओल्ड से ही न्यू भी निकाल सकते हैं और गेनिंग रेशो भी निकाल सकते हैं. तो मेघना, महक और मनदीप, ये इनका ओल्ड रेशो है. जो रिटायर हुआ है उसे हटाओ. मेघना नहीं, महक रिटायर हो गई है तो इनके शेयर बच गए. मेघना इस टू मनदीप 1:1. ऐसे ही आप दूसरे रेशो में भी निकालोगे, जैसे 1:2:1, 1:2:2, कोई भी रेशो हो सकता है. तो ऐसे ही आपको न्यू रेशो निकालना है. और जब ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो, न्यू और न्यू को कैसे निकाला जाए, न्यू रेशो को, तो न्यू रेशो अब जो आया यही हमारा गेनिंग रेशो भी हो जाएगा. मेघना और मनदीप ने 1:1 में गेन किया है, परचेज़ करा है. जाने वाले पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, चाहे डेथ भी हो वो भी जाने वाला पार्टनर है, उस केस में भी महक का जैसे इसमें शेयर है, सेम तरीके से ही होता है. तो अब बस आपको निकालना है कितना पेमेंट गुडविल का करना है. सेल करा है शेयर तो पैसा तो मिलेगा, तो जितना उसका शेयर है उसको देना होगा. गुडविल पार्टनर का नाम क्या है? महक. महक शेयर ऑफ गुडविल इज़, जो भी उसका शेयर है मल्टीप्लाई करो टोटल गुडविल से. टोटल गुडविल इनटू उसका शेयर. मेघना का शेयर क्या है? 1:3. पूरे बिजनेस में 1:3 से ही मालिक है वो. तो टोटल गुडविल देखो गिवन है हमारे क्वेश्चन में, थर्ड पॉइंट में 12,000 इंटू 1/3 है ना. तो 4,000 गुडविल पेमेंट है, उसका शेयर है, उसको हमें पे करना होगा. जो भी खरीद रहा है शेयर पे कर दो. ये दोनों ही देखो पे करेंगे, दोनों ही खरीद रहे हैं. गेनिंग रेशो 1:1 है. तो हो गया. मेघना को डेबिट कर देंगे, मनदीप को डेबिट कर देंगे, टू महक को उसके पैसे दे देंगे. महक शेयर ऑफ गुडविल क्या है? 4,000. तो 4,000 क्रेडिट करते ही उसके अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा. और ये 4,000 कैसे दिया है इन्होंने? जैसे ख़रीदा हो, गेनिंग रेशो जो भी हो, 1:1 में ख़रीदा है, मतलब आधा आधा. 4,000 का आधा, 2,000 डेबिट कम हो जाएगा मेघना का अकाउंट, और 2,000 डेबिट मनदीप का अकाउंट 2,000 से कम हो जाएगा. डेबिट करके अकाउंट में पैसा काटते हैं हम,
ये देखो डेबिट करके पैसा काटते हैं और क्रेडिट करके पैसा उसके अकाउंट में डालते हैं। तो महक मनदीप 2-2 हज़ार देंगे, मेघना मनदीप 2-2 हज़ार देंगे महक को। तो पैसा काट लो पहले तो, मेघना का 2 हज़ार काट लिया और मनदीप का वो डेबिट करके पैसा काट लिया, महक को तो मिलेगा टू महक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और क्रेडिट करना है महक का अकाउंट 4000 से, आप डायरेक्ट 4000 लिख लो, क्रेडिट होकर पैसा बढ़ गया महक के अकाउंट में। लिखेंगे क्या, बाय है क्या, बाय मेघना एंड मनदीप्स कैपिटल अकाउंट। आप एक साथ लिख सकते हो, वेरी मच अलाउड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, अलग अलग लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। थर्ड स्टेप भी देखो आपने कर लिया कंप्लीट, बस फाइनल स्टेप बचा है कैपिटल एडजस्टमेंट और एनी अदर एडजस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन। और कोई एडजस्टमेंट तो पार्टनर से रिलेटेड गिवन नहीं है, अदरवाइज उसको भी ट्रीट करना होता। तो हम बस अब लास्ट पॉइंट देखेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये बोल रहा है महक शुड बी पेड ऑफ, पेमेंट की बात करी है तो कैपिटल एडजस्टमेंट में रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट भी इन्वॉल्व है। इसको पूरा खोल देते हैं इस क्वेश्चन को। कैपिटल एडजस्टमेंट ये कैसे होता है, जो भी आपके बिजनेस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के अकाउंट में जो भी पैसा है उसको किस तरीके से एडजस्ट करें, ये है कैपिटल एडजस्टमेंट। और कितना है पैसा वो कैसे पता चलेगा, क्रेडिट माइनस डेबिट करके। क्रेडिट करके पैसा बढ़ाते हैं हम, डेबिट करके कम करते हैं। तो जितना भी बढ़ाना है या जितना भी पैसा है उसके अकाउंट में माइनस जितना भी काटना है, जैसे आपको 1000 रुपये मिलने हैं, 500 देने हैं आपने, तो अल्टीमेटली 500 आपको किसी को देने हैं, आपकी पेमेंट होगी, है ना। उसी तरीके से क्रेडिट माइनस डेबिट करें, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको पैसा मिलेगा 1000, तो क्रेडिट होगा आपका अकाउंट के अकाउंट से, 500 आपको देना है तो डेबिट होगा, तो अल्टीमेटली फिर 500 फिर मिलेंगे, क्रेडिट मतलब मिलेंगे, है ना। तो ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, तो यही है यहाँ पे, सेम बात ही है। पहले देखो इनके अकाउंट में है कितना पैसा, है ना, अकॉर्डिंगली फिर हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे। अब इस क्रेडिट माइनस डेबिट में किस किस का अकाउंट लें, ये है क्वेश्चन। 2 पार्टनर तो ऑलरेडी कंटिन्यू करेंगे बिजनेस, वो तो पक्का ही है, मेघना और मनदीप, इनका तो हम कैपिटल एडजस्ट करते हैं एज़ पर न्यू रेशो, बाकी कैपिटल एडजस्टमेंट में भी ऐसा ही है। अब इस क्वेश्चन में देखो पेमेंट की बात भी कर दी महक को, रिटायरिंग पार्टनर को अगर पेमेंट की बात करता है तो उसके भी अकाउंट में कितना पैसा है आप इंक्लूड कर देना। क्यों, क्योंकि हम पे करने वाले महक को, महक इज़ टू बी पेड इन सच अ वे, तो इतना पैसा तो होना चाहिए ना। कैश क्या है हमारे पास, पेमेंट तो कैश में ही होगी ना, आप कैश चेक करो 27,000 है। कैपिटल अकाउंट में जो भी पैसा दिख रहा है वो सिर्फ नंबर्स हैं, रियल पैसा नहीं है। जब पेमेंट करनी होती है तो कैश से पेमेंट करनी होती है, तो वो तो घर से लाना पड़ेगा। ये जो भी कैपिटल अकाउंट में दिख रहा है ना आपको, ये सिर्फ नंबर्स है। जब सेटलमेंट करना होता है ना तब रियल कैश लाया जाता है। सच में ये पैसा इधर उधर थोड़ा ना रहा है, जो भी आप अमाउंट लिख रहे हो, ये सिर्फ आप हिसाब रख रहे हो। आप हिसाब करना पड़ेगा ना महक का, तो घर से पैसा लाना है। तो यहाँ पे इसीलिए ये बोल रहा है महक इज़ टू बी पेड इन सच अ वे, अगर पेमेंट करनी है तो कैश लाना होगा, इसलिए इसके अमाउंट को भी ऐड करो, आपको घर से लाना पड़ेगा अगर कम पड़ेगा तो। ओके, अगर पेमेंट की बात नहीं करता है क्वेश्चन तो आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे। इन दोनों के कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है वो क्वेश्चन बताएगा, न्यू रेशो के हिसाब से होता है जनरली, समझे। तो आपको बस इतना देखना है, अगर पेमेंट की बात कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को तो आप ऐड करोगे बाकी कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल एडजस्टमेंट में। चलो फिर देख लेते हैं। महक शुड बी पेड ऑफ एंड द एंटायर सम पेबल टू महक शेल बी ब्रॉट, देखो लाएंगे ये पैसा देने के लिए क्योंकि कैश नहीं है हमारे पास, इन बाय मेघना एंड मनदीप इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल शुड बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो न्यू PSR में इनका कैपिटल होना चाहिए। एंड बैलेंस ऑफ 25,000 इज़ मेंटेन्ड इन कैश अकाउंट, मतलब पेमेंट करने के बाद कैश अकाउंट बैलेंस शीट में 25,000 दिखना चाहिए कि अभी चलो पेमेंट हो गई तो 25,000 बचे भी हैं उसके बाद, ऐसे नहीं कि अकाउंट ज़ीरो कर दो आप, तो आपको ये 25,000 भी मेंटेन करने होंगे। इस केस में अब आप क्या करोगे, पहले तो क्रेडिट माइनस डेबिट कर लेते हैं। ये देखो
हम मेघना से शुरू करते हैं। 20,000, 2500 तो 22,500 क्रेडिट है। 22,500 क्रेडिट लेस मेघना का डेबिट देख लेते हैं, सिर्फ 3,000, 1 और 2,000। तो 3,000 को हम यहाँ पे लिख देंगे डेबिट। काटना है 3,000 और उसके अकाउंट में पैसा है 22,500। देना है हमें, हम तो बिज़नेस है ना, हमें देना है इतना, जब भी देना हो, या भी रिटायर थोड़ा हो रहा है, और काटना है उसके अकाउंट से इतना। तो बैलेंस कितना होगा उसके अकाउंट में, माइनस करके पता चल जाएगा कि इतना पैसा इसके अकाउंट में है। बिज़नेस देगा इसको जब भी देना होगा। ये हो गया 19,500। इसी तरीके से मनदीप का भी देख लेते हैं। 10 और ये 12,500, 12,500 लेस डेबिट देख लेते हैं। 1,000, 2,000, 3,000 भी इसके अकाउंट से भी काटना है। ठीक है, तो इसका कितना हो गया 9,500। अब महक को क्योंकि पेमेंट की बात करिए तो ये भी करना पड़ेगा। कितना ड्यू अमाउंट है? 14,500, 2,500, ये हो गया 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21,000 क्रेडिट लेस डेबिट। अब इसको तो पेमेंट करनी ही है, हमें काटना सिर्फ 1,000 ही है। तो ठीक है, आपने कमाया 21,000 पर पेमेंट करनी है आपको लॉस के वजह से, आपका 1,000 का नुकसान हुआ, तो हम 20,000 आपको पे करेंगे। फ़िलहाल इसको टोटल कर लेते हैं कि इतना पैसा तो बिज़नेस में होना ही चाहिए। 19,500 प्लस 9,500 प्लस 20,000, 49,000। अब आप क्या करो, महक को पेमेंट कर दो जितना कैश आपके पास ऑलरेडी है। मतलब और भी तरीके एडजस्ट करके भी कर सकते हैं, मैं प्लेन रखता हूँ, मेरे को ज़्यादा पसंद है कि आप चीज़ों को प्लेन रखो। एडजस्टमेंट के चक्कर में गलतियाँ हो जाती है, जबकि पॉइंट आता है आपको, बट कभी कभी हो जाता है ना, आप 5 - 2 करके 3 लिखना था, आपने गलती से 2 ही लिख दिया, क्योंकि आता है, फिर भी हो जाती है ऐसी गड़बड़। तो एडजस्टमेंट में ही मेन प्रॉब्लम है, तो हम एडजस्टमेंट हटा दें तो ज़्यादा सही है। तो आप एडजस्ट मत करो, डायरेक्ट करो चीज़ों को। कैश बैलेंस शीट में देखो कितना है, 27,000। तो महक को 27 तो पे ही कर सकते हैं ना। पेमेंट आप कर रहे हो 25,000, तो इस टोटल में 25,000 लेस कर दो। सॉरी 27, बैलेंस शीट में 27 है। अब 27,000 हमारा कैश का बैलेंस गिवन था, बट एनी अदर एडजस्टमेंट जो हमारा 4th स्टेप है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वो अब देखो ऐसे हिडन रहता है। अगर मुझे प्रैक्टिस नहीं है तो फिर मैं ये पॉइंट को स्किप कर सकता हूँ और गलत आ जाएगा आंसर। तो आपको क्या करना है, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कि ये वाला पॉइंट आना चाहिए था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इतने सारे क्वेश्चंस करोगे तो एक कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपको सिखाएगा कि क्या गलती हो सकती है। तो मैं जो बार बार आपको स्टेप्स में लिखवा रहा हूँ, 4th स्टेप ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एडजस्टमेंट और एनी अदर एडजस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन। तो और एनी अदर एडजस्टमेंट में तो n नंबर ऑफ एडजस्टमेंट हो सकते हैं ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, राइट। तो अब देखो क्या हिडन पॉइंट क्या था, 27,000 आपका कैश है, बट आपने क्रेडिटर्स को जब कम किया था, मैंने उस समय बताया भी था कि पेमेंट करना होगा। 900 के क्रेडिटर्स आपने कम करे थे, 8,000 को क्योंकि रीवैल्यू करा था ना 7,100 पे, एंड देन सेटल्ड, इतने में सेटल हो गया था। तो 900 से तो फ़ायदा हो गया आपका, है ना, लाइबिलिटी कम हो गया, तो वो तो रीवैल्यू में डाल दिया। अब इसको पे भी तो करेंगे क्योंकि सेटल्ड वर्ड यूज़ करा है, दैट मीन्स सेटल हो गए, पेमेंट हो गया, आज के बाद लेना देना नहीं। याद है 11th में हम फुल सेटलमेंट वाला पॉइंट करते थे, तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव ओके, वहीं अकाउंट ख़त्म हो जाता था, क्लोज हो जाता था। तो सेटल्ड हो रहा है यहाँ, सेटलमेंट वर्ड यूज़ करा है। तो आप अब इसको पे भी तो करोगे। 8,000 क्रेडिटर्स को 7,500 में कन्वर्ट करा और 7,000 फिर पे कर दिए। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट होते ही लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट होते ही ख़त्म, क्रेडिटर्स ख़त्म। टू कैश अकाउंट आपने 7,100 पे करा हुआ है, ये तो सेटल ही हो गए थे ना। तो अब आपके पास 27,000 रुपये थोड़ी ना है, 7,100 कम भी तो हो गए। तो दैट मीन्स आपका जो
कैश का बैलेंस है वो आपके पास 27,000 है ही नहीं, आपने 7,100 पे करा हुआ है क्रेडिटर्स को ऑलरेडी। तो अब आपके पास कैश बैलेंस कितना है? 19,900। तो ये 19,900 ही तो आप कैश पे कर सकते हो, 27,000 थोड़ी ना पे कर सकते हो, राइट। तो ऐसे हमारे पॉइंट्स गलत हो सकते हैं, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो 19,100 कैश है हमारे पास, और इसके बाद आप ऐड कर देना मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करना है, विच इज़ 25,000, फोर्थ पॉइंट में बताया हुआ है। तो आप पेमेंट जितना कैश है वो कर देना, और जितना मिनिमम बैलेंस बोले उसको ऐड कर देना। तो इतना पैसा तो होना ही चाहिए, प्लस ये भी होना चाहिए, इतना पैसा होगा तो पेमेंट के बाद भी हमारे अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 25,000 कैश में दिख जाएगा, बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में होगा फिर ये। ऑलराइट, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको हम अब थोड़ा प्रैक्टिस से ही क्लियर कर पाएंगे। 49,000 लेस 19,900 प्लस 25,000, तो 54,100 हमारा टोटल आ रहा है। इट शुड बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू पार्टनर्स मेघना और मनदीप ही बचे हुए हैं, और इनका न्यू रेशो क्या है? 1:1, ये हम कर चुके हैं। तो 54,100 को आप डिवाइड कर दो 2 से, 27,050, 27,050 को हम बैलेंस शीट में भी ट्रांसफ़र करेंगे, आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस में इसको पुट कर देते हैं। एंड में ही लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, तो बैलेंस CD 27,050 एंड 27,050। ऑलराइट, बस अब यही है, टोटल करते हैं और आंसर निकालते हैं। यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है, 30,050 हो गया है, और यहाँ पे हमारा फिर 30,050 रहेगा बाय कैश। ये घर से पैसा लाएगा, कम पड़ गए इसके अकाउंट में पैसा, है ना। तो हम फटाफट से देख लेते हैं माइनस करके कितना कम रह गया। 7,550 ये घर से लाएगा। महक का तो पेमेंट ही है, फुल पेमेंट करना है तो उसका तो 2 कैश ही होना है। पूरे अकाउंट्स में 2 कैश या 2 बैंक पेमेंट जाना, बाय कैश बाय बैंक पेमेंट आना, पैसा आना पैसा जाना। ओके, तो देखते हैं कितना, सिर्फ 1,000 ही है जो रिड्यूस करना है, बाकी हमने टोटल वैसे भी किया हुआ है, 20,000 आ रहा था। तो ये हो गया हमारा 21,000 और देखो 20,000 की पेमेंट आ गई, क्योंकि सिर्फ 1,000 रुपये ही डिडक्ट करने हैं। हमें महक को देने थे, क्रेडिट था उसके अकाउंट में 21,000 का, और डेबिट जो उससे लेने थे 1,000, अल्टीमेटली 20,000 पे करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लेते हैं, 30,050 इसका भी है, सेम अमाउंट 30,050। बैलेंसिंग फिगर 7,550, 17,550 और क्लोजिंग बैलेंसेस सब ठीक है। ओके, तो बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, और जो हिडन पॉइंट्स होते हैं उसको तो देखो आपको करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्लीज़ आप सब प्रैक्टिस करें, और इससे हमारा चेंज इन PSR भी रिवाइज़ हो गया, एडमिशन भी रिवाइज़ हो गया, और रिटायरमेंट भी हो रहा है, इवन डेथ भी सेम पॉइंट्स हैं। ठीक है, ओके।